Okay, so in this part we will understand the Rutherford's model of atom. Model of atom and its drawbacks. We will start with this part. And see, Rutherford's model of atom was nothing. He said that the proton and neutron are concentrated in the nucleus and the electrons are revolving in the orbits, but he did not say there are specific orbits for specific electrons. So you can consider like this. And however, they are moving around like this, and what is holding them in their position is the attractive force, which is acting as the centripetal force. When any body, particle, or any heavenly body or anything which moves in a circular path like this, okay, so then what will happen is centripetal force acts in the inner direction and a centripetal fugal force acts in the outer direction. As because it is moving, the centrifugal force acts in the outer direction and it is being balanced by the centripetal force, which is a force of attraction between the positive and the negative charge of the nucleus and the electron. And in this way they remained. So that is Rutherford's model of atom. He did the experiment with what? He did the experiment with gold foil, as you all know. In class 9 only this model of atom was taught to you. So what basically Rutherford did is that Rutherford allowed alpha rays, which was placed in a lead chamber, okay, and a radium nuclei was placed. Radium emitted alpha rays. Why radium emitted alpha rays? Because radium is a radioactive element. Okay, as because radium is a radioactive element, that is the reason why radium emitted alpha rays. Okay, alpha rays are actually helium nucleus, you can think, because its charge is +2 and mass is 4. So you can think it is helium nucleus, and it's a alpha rays are composed of alpha particles, and alpha particles are the helium nucleus, and the radium is a huge nucleus, and from there alpha particles came out a stream of particles, and these alpha rays went on and they were passed through a slit and they hit a gold foil, and the gold foil was surrounded by a circular ZNS screen, zinc sulfide screen. Okay, so what happened is when the alpha rays strike, some of the alpha rays passed straight, some passed and hit here. How did he know? He know by seeing the scintillations. Remember. So what are scintillations? Scintillations are, what to say, little bit small spark that can be seen when a ray hits. Okay, so this was observed and some of the rays bounced back. Now the main fundamental of this experiment was in the fact that how many rays were deviated like this, how many rays passed simply like this straight, and how many rays were deviated at an angle of 180 degree back. So that's what we need to understand. Now the answer is 99% of the alpha rays pass straight, okay, without any deviation. Few alpha rays went an angular deviation like this and produced scintillation here, and very few, only 20,000 of the alpha rays were deflected directly back. Okay, now from this observation, what can you say? From this observation you can say, since most of the alpha particles pass through the foil without undergoing any deviation or deflection, there is lots of vacant space inside the atom.
Okay, that is what Rutherford says. So first point is there are a lot of vacant space in the atom. What is the second point? Since few alpha particles were deflected through a small angle and alpha particles were positively charged, these could be deflected only by some positively charged body present in the atom. The alpha particles deflected were those which passed very closely to this positive body. Means they concluded that in the gold foil there must be small positive body and some of the alpha particle must be going very near to the positive body and they must be deflected, and some must have come and directly hit the positive body or tried to hit the positive body and went back. So it was understood from this that okay, so the conclusion is that the positive charges are concentrated at a middle place which is known as the nucleus, which holds the neutron also, and the electrons are all rotating in circular orbits outside, in the outside space, and there is lots of vacant space in the outside space and the electrons locate there. That's what I had said. So this is Rutherford's model of atom. So it was nice only, sir, this model of atom only we studied in class 9, it is nice. Then what extra Niels Bohr said? By looking, though, it is understanding that by looking we can understand that it is just like Niels Bohr only. Actually the fact is that Rutherford could not explain the stability of the atom. So drawbacks of Rutherford's model of atom. Okay, Rutherford could not explain the stability of the atom. He could not explain the stability of the atom. Sir, how so? Why couldn't he explain the stability of the atom? You see, although Rutherford said that the electrons which were revolving around the nucleus, okay, the Coulombic attractive force means force of attraction between a charged particle and a charged particle. The Coulombic attractive force did supply the centripetal force to balance the centrifugal force so that they remained in the orbit. But however, according to electromagnetic wave theory, it is said that when a charged particle accelerates, okay, when a charged particle accelerates in a what we can say electric field, because why? Because due to this nucleus there is an electric field around it, and when electron is moving in a circular or a direction, due to change of direction there is an acceleration. Always you remember, acceleration is a vector quantity, and as because there is a vector quantity, if its direction changes, so the acceleration changes or increases, and so there is an acceleration or increase in the acceleration. It is not moving in a uniform velocity, and due to that there is, and due to acceleration, when acceleration there, which results into a force, and due to which it results into energy, and what happens is that it continuously loses energy. So after all, the energy of the rotation or the revolution will be lost, because continuously, and it will fall in the nucleus spirally in this way. The electron will fall in the nucleus spirally in this way. Now, why is theory of centrifugal or centripetal force of attraction and centrifugal balance of centrifugal force was rejected? Because this is whenever a body rotates in a circular path and the centrifugal force is taking it outside of the orbit, and the centripetal force is holding it, and the centripetal force has to be supplied. This mechanics is known as classical mechanics.
this type of force thing, is known as classical mechanics, and it holds true and valid for larger bodies and not smaller bodies. That you have to understand. Okay, so what happened is that in this case of subatomic particles, the laws of motion are not guided by classical mechanics of Newton's laws of motion. Classical mechanics is based on Newton's laws of motion. Okay, however, so for subatomic particles, it is dependent on quantum mechanics. Quantum mechanics means laws of motion of subatomic particles. So that is known as quantum mechanics. So according to that, and according to electromagnetic wave theory, okay, what is happening is it is continuously losing electron, and when it will continuously lose electron, it will fall on the nucleus. If a calculation can be done, and it was done, it takes 10 to the power minus 8 seconds to spirally fall on the nucleus for an electron. So that's it, the stability of the atom. Atom is actually stable. This does not happen. Does this happen? No. So the stability of the atom could not be explained by the, what we can say, Rutherford's model of atom. Then again, Rutherford could not tell about the line spectra, could not explain line spectra. That also you have to understand. Rutherford was unable to explain the line spectra, and he was also unable to explain the distribution of electrons and energies of the electrons. He could not say about anything about the distribution. He just said that electrons are rotating like this. Where, in how many orbits, how many electron in one orbit, could not say. When asked how many electron in one orbit, could not say. So he was unable to say about the distribution of the electrons and also energies of the electrons. Okay, so these were Rutherford's failures. So when we understand Rutherford's failures, definitely it was collected by Niels Bohr. Okay, it was definitely corrected by whom? It was corrected by Niels Bohr. And what Niels Bohr did to correct it? So Niels Bohr was the one to correct it. Now, what are the postulates of Bohr's atomic model? We will understand that, so that we can understand the correction and the basis of everything. Okay, so first of all, Bohr said that the atom consists of small, heavily positively charged particle in the middle, which is known as the nucleus, which is same as Rutherford's. Then he said that the electrons are in stationary orbits. The electrons are present in stationary orbits. He said the electrons are present in the stationary orbits okay, the electrons are present in the stationary orbits, and the energy of each of the orbits are quantized. Okay, that means they are the whole number multiples of each other, and quantized energy is there. The lowest energy being of the first one and the highest being of the last one when it is reached. You know this from the Bachpan Mein only, but you didn't know that. Yes, he said that it is not just that the orbits exist, he said that the orbits are quantized. Okay, and the energy of any energy level or shell, which he named KLM or whatever it is, the energy of them, in case of hydrogen atom, he said, in case of hydrogen atom, the energy of each of these energy levels,
okay, as given by En is equals to first shell, second shell, third shell, n is equals to 1, 2, 3, whatever, okay, is equals to 2 pi square m e to the power 4 by n square h square, and it is negative. Now here is a big question, sir, why the orbit's energy he took negative? It must be that it has come from this derivation, it was his derivation, but there must be an explanation why the energy is taken as negative for each of these shells. Okay, that we will understand, definitely that we will explain and definitely understand. The fact is this, that if you think that here is the nucleus and the electron is far away, here somewhere, here you will consider the energy of the electron to be 0, because it is not experience any force by this positive nucleus. When due to attraction it will come closer, I will bring it closer, it will feel attraction. Remember, attraction always leads to lowering of energy. Now why do you say so, sir? The attraction always leads to lowering of energy. I will say that attraction always leads to lowering of energy because, suppose for example a positive charge is there and positive charge is there. If they are kept, they will repel. Repulsion means what? They will become unstable, go away from each other. But if there is a positive charge and a negative charge, they will attract, they will bind with each other, be stable and settle down. So don't you think attraction is always leads to lowering of energy? On the other hand, repulsion leads to hiring or increase of energy. So that thing you must understand. Now what happens when you bring the electrons, so from 0, if the electron is coming closer, if 0 the energy is lowered, will it not be negative? So that is the reason why you can consider the energy of the shells to be negative, because whatever is the energy of the shell, that is only the energy of the electron present in that shell. That too you always know that the energy of the electron corresponds to the energy of the shell. That you should always know. So that means you understand that as because I can explain why the energy of the electron is negative, you can consider as more closer it is to the the nucleus, more negative it will be. I mean, it will be much more bigger value of negative in negative. If here it is -3, here it will be -1. So I hope that you understand that. No, I'm sorry. Here it will be -1, here it will be -3, because less amount of energy will be there. Much more less amount of energy will be there. -3 is obviously less than -1. So that is the thing. Because 0 से यहाँ जितना पास आएगा उतना कम negative energy रहेगा. So that I hope you understand and why. And each of the shells, this is the formula for the energy of the shells, and each of the shells corresponds to the energy of the electron. So that you know. Now what is the formula of the energy of each of the shells? En is equals to minus 2 pi square, so m e to the power 4 by n square h square, where h is Planck's constant, m is mass of the electron, and e is charge on one electron. So, and pi to value you know 3.14. So if you can put the value of pi, e, m and n will be either 1 or 2 or 3 depending on which shell you are talking about and in which the electron is there, first shell or second shell or third shell, and h is the what we can say the Planck's constant. So if you put all the values, you will get En is equals to minus 21.8 into 10 to the power minus 19 by n square joule per atom, because it is for one atom, so that's why.
रिमेंबर दिस इज हाइड्रोजन का फॉर्मूला, हाइड्रोजन एटम का फॉर्मूला, डोंट फॉरगेट दैट। ओके, रिमेंबर दिस इज हाइड्रोजन एटम का फॉर्मूला, डोंट फॉरगेट दैट। सो ई एन इज इक्वल्स टू माइनस 21.8 इंटू माइनस 19 बाय एन स्क्वायर जूल पर एटम। So if you consider convert it into electron volt, it will be minus 13.6 by n square electron volt per atom. Electron volt is the unit of energy only, you know that 1 electron volt is equals to 1.6022 into 10 to the power minus 19 joules, that you should know. Okay, electron volt per atom. So for one atom or one hydrogen atom, and if you want to convert this into kilojoule, then it becomes minus 1312 by n square kilojoule per mole. So this is for one atom, you have to multiply 6.022 into 10 to the power 23 to make it kilojoule per mole. I hope that you understand this. So energy, do you wonder why pi came here? Do you have any explanation why pi must have come in this energy of the shell or energy of the electrons present in the particular shell का formula में pi क्यों आया? मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन आया, चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन आया, एन आया, प्लैंक्स कांस्टेंट भी आ सकता है, चलो मान लिया, लेकिन वो क्यों आया? पाई क्यों आया? और एच ही क्यों आया? प्लैंक्स कांस्टेंट ही क्यों आया? चलो वो आप तो सोच सकते हैं कि ई इक्वल्स टू एच न्यू सोचा जाता है, फोटोन जब हीट करता है तो वो उससे एनर्जी से रिलेटेड है, तो एच आ सकता है। चलो देखते हैं क्यों आया है। ओके, ये सब बातें सोचनी चाहिए छोटी छोटी करके, तो अच्छे से समझ में आता है। एनीवे, आई होप दैट यू अंडरस्टूड ऑल दिस फार्मूलाज। नाउ मूविंग अहेड, ये सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए है। हाँ, N1 बैठाने से फर्स्ट शेल का एनर्जी इतना -1312, सेकेंड शेल का एनर्जी -328, थर्ड शेल का एनर्जी -145, फोर्थ शेल का एनर्जी -82, फिफ्थ शेल का एनर्जी -52 किलो जूल पर मोल, एक मोल में इतना। तो यानी फर्स्ट शेल का सबसे कम एनर्जी नेगेटिव में, राइट और रॉन्ग? तो ऐसे करके आता गया। सो जैसे मैंने बताया था, तो उस हिसाब से दीज आर द एनर्जीज ऑफ द वेरियस शेल्स यूजिंग द फार्मूला। विच फार्मूला? दिस फार्मूला और मे बी दिस फार्मूला। ओके, किलो जूल पर मोल में वही यूज़ किया है 1312। सो आई होप दैट यू अंडरस्टूड अप टू दिस मच। तो ये किसका फार्मूला था? कौन सा एटम का था? हाइड्रोजन एटम के लिए था, सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए। तो सर दूसरा एटम के लिए, हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल के लिए उसने ये फार्मूला दे दिया था कि उसको Z² से मल्टीप्लाई करो। तो ये तो वो रीडबर्ग जैसा ही हो गया जैसा आपने किया था पिछले वीडियो में। तो Z² से मल्टीप्लाई करो। तो हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल के लिए वो एक्सप्लेन, जैसे He+ या Li+2, इसके लिए आप Z² से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो En इज इक्वल्स टू -1312 बाई n² इंटू Z² से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो वो हो जाएगा हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल के लिए। और क्या आपने एक चीज़ गौर किया यहाँ पे, अगर मैं ये चीज़ को कांस्टेंट पकड़ूँ तो एनर्जी इज़ एक्चुअली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/-n², है ना? तो इसको अगर ठीक करोगे, इक्वल्स टू साइन में कन्वर्ट करोगे, तो एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा। जो कांस्टेंट आप लेते हो दैट इज़ ओनली रीडबर्ग कांस्टेंट। इसी वजह से रीडबर्ग का इक्वेशन में जब आप एनर्जी डिफरेंस पता किया था, याद है कैसा था फार्मूला? एनर्जी डिफरेंस एनर्जी डिफरेंस नहीं, आपने वेव नंबर जब पता किया था, रीडबर्ग कांस्टेंट इंटू 1/n1² -1/n1² कर किया था ना। अब कुछ पता चल रहा है? जब तब मैंने बताया था कि n क्या है एक्चुअली, थोड़ा सोचने का कोशिश करो, क्योंकि रीडबर्ग ने तो बताया n होल नंबर है, लेकिन n एक्चुअली क्या था? n एक्चुअली नंबर ऑफ द शेल था। तो यानी एक शेल से दूसरे शेल में जंप करके फिर से जब वापस आया, तब जो एनर्जी डिफरेंस क्रिएट हुआ उसके हिसाब से उसको प्लैंक के साथ लिंक करके वो इक्वेशन आया होगा, जो तो आपको समझ में आएगा। अभी थोड़ा यहाँ पे देख लो तो ये समझ में आ गया होगा। अब ये सब चीज़ें उतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी देख लो। रेडाई ऑफ द स्टेशनरी स्टेट्स, मतलब स्टेशनरी स्टेट मतलब ऑर्बिट, इज Rn, फर्स्ट शेल का A0 इज n²। मतलब जितना रेडियस बढ़ता जाएगा उतना दूर का एनर्जी लेवल या स्टेशनरी स्टेट का मतलब है एनर्जी लेवल या ऑर्बिट,
होगा तो ए नॉट इज़ 52.9 पिकोमीटर, बाकी सब ठीक है, ये हाइड्रोजन के लिए है, अलग अलग शेल्स के लिए हाइड्रोजन का। और आर एन इक्वल्स टू अलग अलग हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल के लिए जेड से डिवाइड कर देना पड़ता है। और वेलोसिटी के लिए द वेलोसिटीज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट ऑर्बिट्स वी एन इक्वल्स टू वी नॉट इंटू जेड बाई एन। ठीक है, वी नॉट क्या हो गया, वी नॉट इज इक्वल्स टू 2.88 इंटू 10⁸, मतलब लाइट का स्पीड सी 3 इंटू 10⁸, वही 2.118। ओके, सो ओ नो नॉट स्पीड, सेंटीमीटर पर सेकेंड, सॉरी ये एक कैलकुलेशन से आया होगा, 2.188 इंटू 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड। यानी उसको जेड बाई एन कर दिया तो उस हिसाब से वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी मिल जाएगा, वेलोसिटी तो नहीं, एंगुलर वेलोसिटी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐसे एंगुलरली मूव कर रहा है। तो ये सब बोर्ड ने पोस्टुलेट में बताया था। आई होप दैट आप रिलेट कर पा रहे हो और आपको समझ में आया होगा। इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि मे भी आपके बुक में ये प्रेजेंट नहीं होगा, ये थोड़ा हाई लेवल बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ, इसलिए इस चीज़ का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। Okay, moving into our next topic. I hope that you have understood the Worth's postulate of atom. Another important point of Worth's postulate is that you see, as I told you, first one is electron is the energy of the electron is quantized, the energy of the orbits are quantized, energy of the electrons are quantized, energy of the orbits are quantized, okay, and it's अवे ही नहीं quantized, ये जो घूम रहा है ना, ये जो पर्टिकुलर शेल का एक इलेक्ट्रॉन का जो इस शेल का जो पर्टिकुलर एनर्जी है और उसमें बैठा हुआ इलेक्ट्रॉन का जो उसके साथ करस्पॉन्डिंग एनर्जी है, तो हमेशा याद रखो वो एंगुलर मोमेंटम के ऊपर डिपेंड करता है। किसका एंगुलर मोमेंटम? इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम। वो जब जैसे ऐसे एंगुलरली मूव करता है ना, तो उसका एंगुलर मोमेंटम के ऊपर डिपेंड करता है। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है mvr, मोमेंटम का फॉर्मूला है मास इनटू वेलोसिटी, एंगुलर क्योंकि एक पर्टिकुलर रेडियस से घूम रहा है तो mvr, तो छोटे वाले ऑर्बिट का छोटा आर तो छोटा एंगुलर मोमेंटम, बड़े वाले ऑर्बिट का बड़ा आर तो बड़ा एंगुलर मोमेंटम, which is equals to n इंटू एच बाई 2 पाई। मतलब अगर फर्स्ट शेल है तो 1 इंटू एच बाई 2 पाई, अगर सेकेंड शेल है तो 2 इंटू एच बाई 2 पाई, अगर थर्ड शेल है तो 3 इंटू एच बाई 2 पाई, मतलब n इज़ द नंबर ऑफ शेल। ठीक है, तो इस बात से चल के समझ में आ रहा है कि ईच ऑफ द शेल क्वांटाइज्ड है। ठीक है, इस बात के चलते ये पता चलता है, और ये भी पता चलता है क्योंकि हर एक शेल का अलग अलग एनर्जी है। तो आप सोच सकते हो कि जब कोई फोटोन आके स्ट्राइक करता है तो वो हायर लेवल में चला गया, जब रेडिएशन होता है तो बाहर से एनर्जी लिया होगा, लेके हायर एनर्जी लेवल में चला गया होगा, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शॉर्ट लिव्ड होता है, उतना देर तक नहीं रह पाता, तो वो क्या होगा, वापस आ गया होगा। तो इसके वजह से यहाँ पे सोचो E2 और यहाँ पे सोचो E1, तो E2 माइनस E1 अगर करोगे तो जो डेल E है वही डेल E इक्वल्स टू एच इंटू न्यू करके ये न्यू फ्रीक्वेंसी लेके निकलता है। तो ज़्यादा एनर्जी डिफरेंस होगा तो ज़्यादा एच इंटू ज़्यादा एनर्जी डिफरेंस होगा तो एच कांस्टेंट है, तो एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा कब होगा? अगर E3 माइनस E1 हुआ, ऐसा कुछ हुआ तो एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा होगा, तो फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होता जाएगा, जैसे कि आप देखते हो और पहले से भी पता है। तो ये सब बातें बोर्ड ने बताई थी और ये सब बातें स्पेक्ट्रम को समझने में हेल्प होती है। तो ये दोनों मतलब एमिशन स्पेक्ट्रा और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा दोनों को समझने में हेल्प करती है। क्यों मैं बता रहा हूँ, सोचो कि यहाँ पे भी और एक शेल है, तो एमिशन स्पेक्ट्रा क्यों? क्योंकि आपने जब हिट किया होगा तो जितना वो जंप किया होगा, ठीक है, तो उतने उसके हिसाब से एनर्जी डिफरेंस क्रिएट हुआ होगा, तो उसके हिसाब से उसका फ्रीक्वेंसी का निकल रहा होगा। या फिर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास किया हो या कुछ भी। और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में क्या हुआ होगा, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का लाइट या वेवलेंथ का लाइट, फ्रीक्वेंसी का लाइट ही सोचो, आके हिट किया होगा, तब जब पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का लाइट आके, लाइट में अगर तुम सोचोगे कि फोटोन्स है, ठीक है, सॉरी नॉट पॉजिटिव चार्जेस, फोटोन्स पैकेट्स ऑफ एनर्जी है, तो वो आके क्या होगा कि देखो एमिशन में क्या होता है, पहले
एनर्जी की वजह से जंप करके हायर शेल में जाता है, फिर वापस आ जाता है। तो इसीलिए E3 माइनस E1 का एक फ्रीक्वेंसी होगा और E2 माइनस E1 का कम फ्रीक्वेंसी होगा, कम एनर्जी डिफरेंस में, और उस वजह से लाइट एमिट करके निकलता है। लेकिन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में क्या होगा, जिस पूरा लाइट आके घुसा होगा और एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को वो एब्जॉर्ब कर लिया होगा, और कौन से वाले वेवलेंथ को या कौन से वाले फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब कर लेता है और डार्क बैंड क्रिएट करता है, जिसका वो एमिशन कर पाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो एनर्जी डिफरेंस, सोचो यहाँ से जंप मारा होगा, ठीक है, जो एनर्जी डिफरेंस में वो जंप मार के फ्रीक्वेंसी निकाला होगा, ठीक है, उसी को शायद इसने एब्जॉर्ब करके यहाँ, उसी को शायद उस फोटोन को, जिस फोटोन को उसने रिलीज़ किया है एमिशन के वक्त, उस फोटोन को उसने यहाँ पे कैप्चर कर लिया होगा या एब्जॉर्ब कर लिया होगा, ठीक है। इस वजह से वहाँ पे क्या हो रहा है, लाइट पास नहीं हो पा रहा है, वो लाइट वो वाले हायर शेल में ऑब्जॉर्ब हो जा रहा है, ठीक है, क्योंकि उस वाले लाइट को एब्जॉर्ब इसलिए करेगा क्योंकि वो उसी एनर्जी लेवल में है और कंटिन्यूसली यहाँ पे उस एनर्जी लेवल में घूमते जा रहा है। तो इस हिसाब से हम लोग समझ सकते हैं कि ऐसा चलता है। तो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दैट हाउ बोर एक्सप्लेन द एटॉमिक स्पेक्ट्रा। और थोड़ा ज़्यादा पढ़ोगे तो पता चलेगा कि अगर आप बोलोगे कि E2 माइनस E1 इज इक्वल्स टू H न्यू, तो आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली ये क्या हो रहा है, E2 माइनस E1 बाई H इज इक्वल्स टू न्यू, है ना। अब आपको पता है कि C इज इक्वल्स टू न्यू इंटू लैम्डा, तो इसका मतलब ये हुआ कि न्यू इज इक्वल्स टू C बाई लैम्डा। तो इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करोगे तो C बाई लैम्डा इक्वल्स टू E2 माइनस E1 बाई H, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, अगर लैम्डा को आप इस साइड में उठा दोगे तो लैम्डा को अगर H इंटू C बाई E2 माइनस E1 इज इक्वल्स टू हो गया आपका H इंटू C बाई E2 माइनस E1 इज इक्वल्स टू हो गया आपका लैम्डा। तो ये हिसाब से अगर आप आगे बढ़ते जाओगे तो हम लोगों को इसी क्वेश्चन से पता चलता है एक पर्टिकुलर एनर्जी डिफरेंस के लिए एक पर्टिकुलर वेवलेंथ एग्जिस्ट करता है, व्हिच डिपेंड्स ऑन द प्लैंक्स कांस्टेंट। यो यहाँ से भी पता चलता है। यू गेटिंग माई पॉइंट? सो ये बिल्कुल लाइन स्पेक्ट्रम को ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम्स का लाइन स्पेक्ट्रम को समझा देता है। और मल्टीपल लाइंस क्यों आया था, क्योंकि मल्टीपल जंप हुआ होगा। अब रीडबर्ग के साथ थोड़ा कंपेयर करके सोचते हैं। रीडबर्ग ने क्या बताया था, रीडबर्ग ने बताया था कि भाई वेव नंबर इज इक्वल्स टू R इंटू 1/n1 ब्रैकेट 1/n2 स्क्वायर माइनस 1/n1 स्क्वायर, है ना। तो रीडबर्ग ने ये बताया था कि इतना डिफरेंस में ये n होल नंबर है। अब चलो बोर के हिसाब से रीडबर्ग को समझते हैं कि एक पर्टिकुलर एनर्जी का En, पर्टिकुलर शेल का एनर्जी En इज इक्वल्स टू माइनस 2 पाई स्क्वायर, ठीक है, इंटू m e⁴ बाई n स्क्वायर h स्क्वायर। अब समझ में आ रहा है क्यों यहाँ पे पाई आया होगा, क्योंकि इसका जो एनर्जी फिक्स किया होगा वो तो एंगुलर मोमेंटम के ऊपर फिक्स किया होगा, जिसको एंगुलर मोमेंटम जानने के लिए उसका पाथ किया होगा, मतलब मोशन का इक्वेशन सॉल्व किया होगा। तो इस हिसाब से पाई आर तो आया होगा ना, सरकमफरेंस के हिसाब से 2 पाई आर, वहाँ से पाई आया होगा शायद, ठीक है। तो ये सब बातें थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। अभी तो हायर लेवल में जाके इसका डेरिवेशन सीख जाओगे अगर मास्टर्स में केमिस्ट्री लिए तो हालांकि हम लोगों को ये समझ में आता है कि हाँ चलो बोर्ड ने ऐसा बताया था हाइड्रोजन एटम के लिए। तो ये अगर हुआ, और एक बात है कि एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू -1/n स्क्वायर। नेगेटिव क्यों है मैंने पहले बताया था। तो En इज प्रोपोर्शनल इक्वल्स टू रीडबर्ग कांस्टेंट RH इक्वल्स टू माइनस ऑफ RH, En इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ RH इंटू 1/n स्क्वायर। तो इस हिसाब से लेंगे। तो यहाँ पे अगर आप कंपेयर करोगे तो RH देखो En इज इक्वल्स टू -2 पाई स्क्वायर m e⁴ बाई h स्क्वायर इंटू 1/n स्क्वायर करोगे तो RH इक्वल्स टू ये बन गया ना, RH इक्वल्स टू 2 पाई स्क्वायर m e⁴ बाई h स्क्वायर। हाँ, तो बोर के हिसाब से ये बन गया। अब रीडबर्ग कांस्टेंट इसका सब के वैल्यू को बैठाओगे तो आपको इसका वैल्यू आपका क्या आया था, इसका वैल्यू आया था 21.8 इंटू
10⁻⁻19 जूल पर एटम। ये रिडबर्ग कांस्टेंट का ये इसका वैल्यू याद करके देखो, हाइड्रोजन एटम का इसका इतना वैल्यू आया था, उसको मैंने कन्वर्ट किया था। ये जो देखो यहाँ पे है ना, उस हिसाब से मैंने इतना जूल पर एटम बाई एन स्क्वायर तो छोड़ो, यहाँ पे एन स्क्वायर को मैंने ये पकड़ लिया, या कंपेयर करके हो रहा है, तो उस हिसाब से ये वैल्यू आया था। तब चेंज किया था इलेक्ट्रॉन वोल्ट में या किलो जूल पर मोल में, वो दूसरी बात है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना है तो इससे मल्टीप्लाई कर दो और सॉरी डिवाइड कर दो, और किलो जूल पर मोल में तो जूल को किलो जूल में कन्वर्ट करो, और पर एटम का है तो 6.2022 × 10⁻23 से मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा। एनीवे दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट यहाँ पे रिडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू ये आ गया। अब अगर थोड़ा आगे बढ़े तो यहाँ पे समझ में आ रहा है कि चलो फॉर वन जंप ऑफ इलेक्ट्रॉन थोड़ा समझते हैं। थोड़ा इलेक्ट्रॉन ने जंप किया है, जैसा बोर्ड ने बताया इलेक्ट्रॉन ने जंप किया है। तो अगर इलेक्ट्रॉन ने जंप किया होगा तो डेल ई इज इक्वल्स टू एक शेल से दूसरे शेल में किया होगा, यानी E2 - E1 हुआ होगा। तो अब इसके हिसाब से अगर मैं E2 - E1 करूं तो E का वैल्यू En का वैल्यू क्या आता है? En का वैल्यू आता है माइनस रिडबर्ग कांस्टेंट इंटू 1/n², है ना, यहाँ पे सिखा है। तो रिडबर्ग कांस्टेंट इक्वल्स टू दिस वन। अब सोचो तो उस हिसाब से अगर करोगे तो माइनस रिडबर्ग कांस्टेंट इंटू 1/n² माइनस रिडबर्ग कांस्टेंट इंटू 1/n1²। तो अब इसको डेल ई इक्वल्स टू रिडबर्ग कांस्टेंट, सो 1/n1² माइनस 1/n2², यही था। ठीक है, तो आ गया ना ऐसा। अब ऐसा नहीं था एक्चुअली, तो एनर्जी का, अब ये तो एनर्जी का चेंज हो गया ना। इस फार्मूला को आप एनर्जी के चेंज के लिए यूज़ कर सकते हो। इस फार्मूला को आप किसके लिए चेंज यूज़ कर सकते हो? एनर्जी के चेंज के लिए यूज़ कर सकते हो। अगर आपको बोला है कि एक जंप एक पर्टिकुलर शेल से दूसरे पर्टिकुलर शेल में दिया है, तो रिडबर्ग कांस्टेंट ये है, तो कितना एनर्जी चेंज हुआ है, तो इस हिसाब से कर सकते हो। लेकिन रिडबर्ग कांस्टेंट में वेव नंबर का ये था। अब तुमको पता है कि अगर क्वांटाइज्ड है अकॉर्डिंग टू बोर, हर शेल का अगर एनर्जी क्वांटाइज्ड है तो आप E इक्वल्स टू एच न्यू यूज़ कर सकते हो। तो आपको, तो अगर आप E इक्वल्स टू एच न्यू यूज़ कर सकते हो, डेल E इक्वल्स टू एच न्यू, तो आपको क्या मिला? न्यू इक्वल्स टू डेल E बाई एच मिला कि नहीं मिला? ठीक है, तो अब क्या करते हैं, तो न्यू इक्वल्स टू हम लोगों को मिल गया डेल E बाई एच। तो वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। डेल E इक्वल्स टू क्या होगा? रिडबर्ग कांस्टेंट इंटू 1/n1² माइनस 1/n2² बाई एच, है ना। तो न्यू इज इक्वल्स टू, अब रिडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू कितना निकाला था अभी 21.9 इंटू 10⁻⁻19, और इसका वैल्यू क्या है? एच का वैल्यू इज 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल पर सेकेंड, पहले ही सीखा है। तो 1/n1² माइनस 1/n2², ये हो गया ना आपका न्यू। तो न्यू इज इक्वल्स टू आपका आ गया 3.29, इसको अगर सॉल्व करोगे इंटू 10⁻15, ठीक है, तो 1/n1² माइनस 1/n2², इस हिसाब से आ गया। तो न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी का। अब आपको पता है कि वेवलेंथ c इज इक्वल्स टू न्यू इंटू वेवलेंथ। तो वेवलेंथ इज इक्वल्स टू c बाई न्यू, लेकिन वेव नंबर दैट इज वेव नंबर इज इक्वल्स टू ऑपोजिट ऑफ वेवलेंथ। तो अगर वेवलेंथ इज इक्वल्स टू c बाई न्यू, तो वेव नंबर इज इक्वल्स टू न्यू बाई c। वेव नंबर इज इक्वल्स टू न्यू बाई c। तो उस हिसाब से अगर करोगे तो वेव नंबर इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी बाई c। तो फ्रीक्वेंसी क्या आया?
फ्रीक्वेंसी आया आपका ये 3.29 इंटू 10⁻15, 3.29 इंटू 10⁻15 बाई सी। सी का आपका हो गया वैल्यू 3 इंटू 10⁸, है ना, इंटू 1/n1² माइनस 1/n2²। इस हिसाब से आपका आ गया इस वैल्यू को अगर करोगे 1.09 इन 677 इंटू 10⁻7, सो 1/n1² माइनस 1/n2²। ओके, सो ये हिसाब से आपका वैल्यू आ गया। ये हो गया आपका रिडबर्ग कांस्टेंट। तो यही चीज़ तो पहले सीखा था कि ये रिडबर्ग इक्वेशन था, लेकिन अभी मैंने रिडबर्ग इक्वेशन डिराइव किया डिपेंडिंग ऑन n टू बी द नंबर ऑफ शेल्स, जो होल नंबर बताया था पहले। तो इस हिसाब से ये क्या हो गया, उस हिसाब से हो गया कि ये एक्सप्लेन कर रहा है लाइमन बाल्मा पैस्टन सीरीज़ को, एक्सप्लेन कर रहा है कि एक शेल से दूसरे शेल का जंप हुआ होगा एनर्जी एब्जॉर्ब के बाद। जो मैंने बताया वो जस्टिफाई हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो दैट इज़ द थिंग। अब एक क्वेश्चन आप पूछ सकते हो कि सर इतना सारा सीरीज़ क्यों आया था? क्योंकि देखो डिस्चार्ज ट्यूब में जब तुमने हाइड्रोजन को लिया था, बहुत सारा पार्टिकल्स ऑफ हाइड्रोजन था, मॉलिक्यूल्स ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, वो एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन था। वो जब लाइट पड़ा था इसमें, ठीक है, तो या फिर जब इसको एक्साइटेड किया होगा तब वो एटम्स में सेपरेट किया होगा, और अलग अलग एटम्स अलग अलग लेवल में, किसी एटम में फर्स्ट शेल से थर्ड शेल तक गया होगा, किसी एटम में फर्स्ट शेल से फिफ्थ शेल तक गया होगा, ऐसे करके अलग अलग सीरीज़ आ गया होगा, लाइमन बाल्मर पैस्टन सीरीज़ आ गया होगा। तो उस हिसाब से अगर सेकेंड लाइमन सीरीज़ में क्या होगा, फर्स्ट शेल से क्या होगा, सेकेंड शेल थर्ड शेल या फोर्थ शेल में जंप कर सकता है या फिफ्थ शेल में जंप कर सकता है। बाल्मर में सेकेंड शेल से ऊपर में जंप करेगा, पैस्टन से थर्ड शेल में ऊपर में जंप करेगा, जो मैंने पहले सिखाया था। ब्रैकेट में फोर्थ शेल से ऊपर में जंप करेगा, फॉन्ड में फिफ्थ शेल से ऊपर में जंप करेगा। तो ये हो गया वोर। तो वोर वॉज सक्सेसफुली इन एक्सप्लेनिंग द लाइन स्पेक्ट्रम व्हिच रदरफोर्ड वाजंट। तो फिर वोर्स एटम को क्यों नहीं मानते? क्योंकि वोर का भी कुछ ड्रॉबैक्स था। क्या ड्रॉबैक्स था? ड्रॉबैक ऑफ वोर ये था कि वो ज़ीमैन एंड स्टार्क इफेक्ट नहीं समझा पाया। और दूसरा ड्रॉबैक ये था कि मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम का स्पेक्ट्रम वो नहीं समझा पाया। हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम तो समझा दिया चलो, लेकिन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम का स्पेक्ट्रम हो नहीं समझा पाया। सो सर ज़ीमैन एंड स्टार्क इफेक्ट क्या है? ज़ीमैन एंड स्टार्क इफेक्ट यह है कि जब स्पेक्ट्रल लाइंस जो लाइमन बाल्मर पैस्टन सीरीज़ है उसको मैग्नेटिक फील्ड में से पास कराया जाता है, ओके। तो स्टार्क ने बताया था कि अगर मैग्नेटिक फील्ड से पास करोगे तो वहाँ पे थिन लाइंस दिखते हैं, मतलब स्पेक्ट्रल लाइंस के अंदर भी छोटे छोटे थिन लाइंस दिखते हैं। ऐसा क्यों? वो नहीं बता पाया। लाइंस, स्पेक्ट्रल लाइंस तो चलो दिखे एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के स्पेक्ट्रल लाइंस के अंदर भी छोटे छोटे थिन लाइंस दिख रहे थे। इलेक्ट्रिक फील्ड से पास कराओ, जो ज़ीमैन ने बताया था, तो भी सेम छोटे छोटे थिन लाइंस दिख रहे थे। क्यों? बोर नहीं समझा पाया। एक प्रॉब्लम सॉल्व हुआ तो दूसरा प्रॉब्लम आ गया। अब मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम का जो स्पेक्ट्रम था वो बहुत ही टफ था और या कॉम्प्लेक्स था, नहीं समझा पाया। हालांकि हाइड्रोजन के भी बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, लेकिन उसको एक्सप्लेन कर पाया, लेकिन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम का नहीं एक्सप्लेन कर पाया। शेप ऑफ मॉलिक्यूल नहीं एक्सप्लेन कर पाया। कोवेलेंट, देखो जब कोवेलेंट मॉलिक्यूल फॉर्म करता है तो वो डायरेक्शनल होता है ना, ऐसे टेट्राहेड्रॉन फॉर्म कर देता है। हाँ, तो डायरेक्शनल क्यों होता है, पर्टिकुलर एंगल क्यों फॉर्म होता है, ये सब नहीं समझा पाया बोर ने। और सबसे बड़ी बात, डी ब्रॉगली और हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी, डी ब्रॉगलीज डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये दोनों नहीं समझा पाया। चलो ज़ीमैन एंड स्टार्क इफेक्ट के बारे में बता दिया, मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के बारे में बता दिया, तो अब डी ब्रॉगली और हाइजेनबर्ग्स के बारे में भी बताइए सर, कि अच्छे से पता तो चले कि
क्यों वोर अनसक्सेसफुल था और क्यों वेव मैकेनिकल मॉडल आया, तो इसके लिए पार्ट 9 के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। अब ये बहुत ज़्यादा मोनोटोनस हो जा रहा है, नहीं तो पार्ट 9 भी बनाना पड़ेगा। तो आपका लक ये है अच्छा कि यहीं तक आपका टेस्ट होगा, नहीं यहाँ तक नहीं होगा, आपको पास पार्ट 9 जाएगा। आज सोचो थर्सडे है तो सैटरडे तक चला जाएगा, तो आप पार्ट 9 भी देखोगे, है ना। पार्ट 9 में ज़्यादा कुछ समझाने तो नहीं रहेगा, लेकिन चला जाएगा, पार्ट 9 भी आपके पास चला जाएगा। तो यहाँ पे आज यहीं को ख़त्म करते हैं और ओके, थैंक यू। कुछ वेट कुछ सम्स हैं जिन सम्स को आप थोड़ा देखने से ही समझ जाओगे, तो वो सम्स थोड़े बहुत करने पड़ेंगे। तो पहले तो एक सेट ऑफ सम्स मैंने शायद दे रखा है, हाँ उसको समझा रखा है, वो स्क्रीनशॉट भी लेने बोला था। सेकंड सेट ऑफ सम्स है ये भी करना पड़ेगा, तो उसको समझ लेते हैं। चलो फिर वीडियो को एंड करेंगे। Calculate the wavelength of the radiation emitted when an electron. Calculate the wavelength of the radiation emitted when an electron in a hydrogen atom undergoes transition from fourth energy level to second energy level. In which part of the level? तो En equals to this. तो fourth to third. तो E4 E डेल्टा E4 माइनस E2, तो इसको कॉमन ले लिया, ठीक है। En इक्वल्स टू ये बैठा सकते हो ना जूल पर एटम के लिए, ये तो पहले ही सिखाया था, है ना। तो इसको कॉमन ले लिया तो कर दिया, आ गया। द वेवलेंथ क्या होगा, इक्वल्स टू एच न्यू, डायरेक्ट बैठा दिया, आ गया। तो 486 नैनोमीटर, विजिबल रीजन कौन सा कलर में है वो भी निकाल सकते हो आप। वायलेट में 400 to 500, तो वायलेट में वायलेट ब्लू वैसा भी होगा। तो ईजी है ना ये सम्स, हाँ। जो टफनेस होगा तो लेट मी नो। कैलकुलेट द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ He प्लस। फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ He प्लस तो हाइड्रोजन लाइक एटम है, तो Z² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और डायरेक्ट वैल्यू बैठा दिया, आ गया ना। क्या बड़ा बात है ये सब सम्स, नहीं समझ में आया तो बोलो, आ जाना चाहिए समझ में। ये जैसे मैंने एक्सप्लेन किया है वो समझ में आ जाना चाहिए। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द, पॉज करके देख लेना, समझ में नहीं आता है तो मुझे फ़ोन करो, पता करने का कोशिश करो। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट वोर्स ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम given that the Wor's radius is this, Planck's constant is this, mass of the electron is this, and क्या पूछा है, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओ MBR इक्वल्स टू NH/2 पाई होता है। MBR इक्वल्स टू NH/2 पाई होता है, जो मैंने समझाया था। तो V इक्वल्स टू NH/2 पाई है, तो सब वैल्यू बैठा दिया, वेलोसिटी आ गया। घंटा का समय ये, ठीक है। तो ये भी देख लो, शायद समझ में आ जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो, लेके देखो, और इसको भी स्क्रीनशॉट लेके देखो। आसान सा सम्स है, नहीं समझ में आया तो मुझे पूछो, इसको भी स्क्रीनशॉट लेके देखो। सो थैंक यू। सम्स देखना, क्योंकि सम्स देखना इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू। वेट फॉर पार्ट 9 नाउ। और यहाँ पे जितने भी एग्जाम्पल्स है, इसके हिसाब से अगर सम्स करना चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और यहाँ पे इस सम्स का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और यहाँ पे है ये करो आंसर्स, ठीक है। ओके, थैंक यू।